Hello everyone and welcome back to my channel. Let's start with our today's video. Today we are going to talk about the calculation of cost of preference share capital. As in the last video I have told you that in order to compute the cost of capital from preference shares, it has been assumed that preference shares are of only two types. The one is irredeemable preference shares and the other one is redeemable preference shares. So in the last video we have done some of the practicals that were based on irredeemable preference shares. So we need to just brush up that content. So let's start with one practical. As the formula for computing the cost of preference share capital after tax was PD reference to dividend on preference shares upon net proceeds into 100. This was the formula that we were need to use for computing this cost. So there's a practical and it says that Mohan has issued 30,000 8% irredeemable preference shares of rupees 100 each. The cost of issue is 3% of issuing price. Find out the cost of capital after and before tax when the tax rate is 25%. Now this question is based on two parts. The first part is the par value and other one says that if the shares or the preference shares are being issued at 10% premium. अब आपको क्वेश्चन क्या है, करने का पूरा तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस दो बार स्लाइड चेंजेस आएंगे. सबसे पहला फैक्ट हो गया, समझेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 8% हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं. दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे जो हमें पीडी का मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स किस रेट से मिलेगा, 8%. और फेस वैल्यू कितनी रुपीज़ हो जाएगी, 100 रुपीज़ हो जाएगी. तो यानी कि आप पीडी की वैल्यू क्या रखिएगा, 8 रुपीज़ रखा जाएगा दोनों ही पार्ट में, चाहे आप पार के लिए करिए चाहे प्रीमियम के लिए करिए. अब हम आते हैं नेट प्रोसीड्स. दोनों केस के लिए नेट प्रोसीड्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी. लेट्स टॉक अबाउट व्हेन द शेयर्स आर बीइंग इशूड एट पार. अगर हम पार पे बात करते हैं, क्योंकि इशू प्राइस पार की क्या है, 100 है, 100 का 3% इशू कॉस्ट है, तो यानी कि एक प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए हमारे तीनों पे क्या हो जा रहा है, खर्च हो रहा है. तो नेट प्रोसीड्स कैसे होगा, 100 - 3 इक्वल्स टू हाउ मच, 97. So we have got the value of PD and NP. We can compute the value of cost of preference shares after tax, and that is equal to 8.24%. So if you want to compute the cost of preference shares before tax, हम simply क्या करेंगे, जो हमने cost of preference shares after tax compute की थी, इसको divide कर देंगे 1 minus tax rate से, and we get the answer in this particular manner. तो हमें इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 10.996. But what will happen if these preference shares are issued at 10% premium? अच्छा, अब तो preference shares कितने पे इशू हो रहे हैं, 10% प्रीमियम के साथ इशू हो रहे हैं. तो ऐसे केस में पीडी मैंने आपको बताया था क्या रहेगा, वो सेम रहेगा. प्रीमियम कॉस्ट कितनी थी, 10%, तो ऑब्वियसली इशूइंग प्राइस कितनी होगी, 110. एंड सिंस द क्वेश्चन सेज दैट द कॉस्ट ऑफ इशू इज 3% ऑफ इशू प्राइस, क्वेश्चन ने कहा है कि वहां पे जो इशू प्राइस होगा उसका 3% हमारी कॉस्ट आ रही है, यानी 110 का हम 3% निकालेंगे तो कितने रुपये हो जाएगा, 3.30, यानी 3 रुपीज एंड 30 पैसा. Hence net proceed is equals to face value plus premium minus cost is equals to 106.70. लेस्ट जितना भी पार्ट होगा वो सारा क्या होगा, सेमी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो दैट्स ऑल वी नीड टू नो अबाउट irredeemable preference shares. Now we are going to talk about redeemable preference shares. Redeemable preference shares क्या होते हैं, that need to be repaid after the डेट ऑफ मैच्योरिटी. जैसे ही मैच्योरिटी की डेट आएगी उस डेट पे हम इसका क्या कर देंगे, रिडम्पशन कर देंगे या फिर पेमेंट कर देंगे. अब आप नोटिस करोगे जैसे हम डिबेंचर्स के केस में था, हमारा रिडेमेबल डिबेंचर्स था, ऑलमोस्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, सेम ही है. आप ये देख सकते हो, पीडी का मतलब डिविडेंड हो गया, एमवी का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू हो गया, एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स, एंड एन इज द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, एंड द सेम फॉर्मूला इज गिवन दिस and multiplied by 100. So we will get the cost of preference after tax. Before tax के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, हम after tax निकाल लेते हैं और 1 minus tax rate की वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बिफोर के लिए आ जाता है. So let's see a practical also on this basis. And it says that Gopi issued at par 5,000 10% preference shares of rupees 100 each. अब ये क्या कह रहा है, गोपी ने 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया और एक प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी, 100 की. रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, देखिएगा रिडीमेबल है तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी रख देंगे, हम 10 रख देंगे. एट ए प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर, एट ए प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर, यानी मैच्योरिटी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई, आज तो 100 का है, 6 पर शेयर 6 रुपये और ऐड कर देंगे तो 106 रुपये हमारी क्या बन जाएगी, मैच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी. द कॉस्ट ऑफ इशू प्राइस इज 4, तो यानी कि करंट पे इशू कितने पे हुआ था, पार पे 100, और हमारा कॉस्ट कितनी हो गई, 4 रुपीज़. दैट मीन्स कि हमारी एनपी की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 96 रुपीज़ आ जाएगी. सो इन दिस वे वी कैन कंप्यूट दिस वैल्यू.
लेट्स सी दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आपने देखा, देखिए पीडी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपीज़, क्योंकि वो 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे। एक्सपेंस कॉस्ट यानी कि हमारी 4 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन थी, तो नेट प्रोसीड्स कितने हो जाएंगे, 96 रुपीज़। मेच्योरिटी वैल्यू हमारी क्या है, फ्यूचर में कहा है कि जैसे ही 10 साल बीतेंगे तो हम हर एक प्रेफरेंस शेयर्स के बदले 6 रुपये एडिशनल देंगे, यानी कि 6 रुपीज़ प्रीमियम हो जाएगा। तो 106 हमारी क्या हो जाएगी, मेच्योरिटी वैल्यू पे मिलेगा। उस तरीके से हमने अपने फॉर्मूले में प्लेस किया है एंड वी गेट द आंसर एज 10.89%। एज वी ऑल कैन सी दैट दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, एंड देयर आफ्टर सिंपली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्सेस। Now let's move to another practical, a practical और देख लेते हैं, and it says that a company issued 2000 8% preference shares of rupees 100 each at 5%। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, पहले तो इशू करते वक्त ही कितना प्रीमियम हो गया, 5% का, यानी 100 का हम 5% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 रुपीज़ हमारी क्या बन जाएगी, एनपी वैल्यू। दी शेयर्स आर रिडेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये एन कितना हो गया, 10 हो गया, एट ए प्रीमियम ऑफ 7%। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम फ्यूचर में कितने पे हो रहा है, 107 रुपये पे रिडीम होगा, तो यानी इसकी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 107। द कॉस्ट ऑफ इश्यूज ₹3 पर शेयर, तो जो हमारी एनपी आ रही थी उसी में 3 रुपये और माइनस कर देंगे तो फिर हमारी क्या आ जाएगी, नेट प्रोसीड्स की वैल्यू आ जाएगी। एंड नाउ वी कैन सिंपली कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। वी कैन सी हियर दैट पी डी इज इक्वल्स टू, डिविडेंड का रेट कितना है, 8%, एक प्रेफरेंस था 100 रुपये का, तो उसके हिसाब से कंप्यूट किया, पीडी की वैल्यू कितनी हो गई, 8। नेट प्रोसीड्स हमें 5% का प्रीमियम मिल रहा था और 3 रुपये की कॉस्ट आ रही थी, तो हमारी नेट प्रोसीड्स कितनी हो गई, 102। मेच्योरिटी वैल्यू के लिए बोला था कि भाई 7% प्रीमियम के साथ जाएगा, तो हमने कितने रुपये लिख दिया, 107 रुपीज़ लिख दिया। एंड सिंस एन इज 10 ईयर्स, so we can simply place these values to get our answer, and the answer would be 8.1339 percentage. And similarly, if you want to compute the cost of preference share capital before taxes, then we are going to this particular formula, placing the value, we get the answer as 10.845%. So that's all for today. आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था, that was irredeemable preference shares. We are going to cover more topics from this case. That's all for the day. Thank you everyone.